So guys, here we are starting our first lecture, prepared by me, Mohammed Irfan, Introduction of Technology in Business. So as we have discussed a basic concept of computer and the basic concept of the using of the computer in our business, how this all are essential, किस तरह जो है ये essentials हो सकते हैं हमारे business में. इसकी कुछ जो है वो हमने बैकग्राउंड जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है इन द लास्ट फ्यू आवर्स लेक्चर्स. हमने जो है वो कुछ बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की है, इनिशिएट लेने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एक माइंडसेट आपका डेवलप हो जाए कि व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस एंड व्हाई वी आर हियर फॉर लर्निंग दिस computer course in the business. So in the lecture one, that is the name of introduction of computer. Have you all you seen in the course outline too? We have about 16 weeks in this course to complete this course, and we have bifurcated with the different lectures. So starting the every lecture we have a certain agenda. हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक सर्टेन एजेंडा होगा कि हम क्या उस लेक्चर के अंदर हमारे क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, क्या हम उसके अंदर जो है वो अचीव करेंगे आफ्टर वी गेट discuss the topic on certain lectures. So agenda number one is what is the computer do and how they are used. मतलब कि कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है और हम उसको किस तरह से अपने रोजमर्रा या किस तरह से अपने लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Then in the second thing we have discussed about the computer terminologies. In the third point, an overview of history of the computers. In the third point, we will discuss the different generation and the overview about the computer history, how they all outcomes and how they will get it by the calculations and how they all are started and what we were now. कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स को साथ लेके चलें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो. So after the third point, we have the basic type of computer in use today. How many types of the computer we are using in our daily life and in the business, इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करेंगे. After the discussion of the daily using of the computer, an overview of network and the internet, थोड़ा सा network और internet के बारे में पढ़ेंगे कि how these are network are using. And finally and not the least is the impact of the computer in societies, कि आप इम्पैक्ट जो है वो किस तरह कंप्यूटर का आ रहा है हमारी डिफरेंट सोसाइटीज में. तो कहाँ हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए अपना लेक्चर जो है वो with the first agenda that should be on the computer. So as we know, computer is an electronic device that convert data into information.
तो ये जो 3 वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना, द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, हम इसके ऊपर जो है वो तकरीबन काफी सारी बात जो है ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज द डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। These two things are very important whenever we have to discuss on anything. The data is collection is the raw thing that we have discussed in the last lecture too. What is the data? Data is the raw facts and figures. Anything that is raw, whenever you are going to get knowledge, and whenever you are going to get any kind of information, the first step you have to take to uh, get the data. And data should be any raw and facts. You cannot be defined is to be concise on a specific and a particular way. Once you have get the data, you have to process it up to the certain SOPs and up to the certain rules and regulations. And when you have to process this on the particular rules and regulations, you will make it on into a information. Understand हो रही है बात आपको? कि whenever you have anything in your mind, whenever you are going to be getting anything to be researched, whenever you have getting to be get into the knowledge to every point or anything, the first step you're taking to be get the data on a particular way. And once you have get the data, you have to process that data to make a useful information. देखिए डाटा के अंदर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक ओवरऑल डाटा आपके पास जो है डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन का आ सकता है, लेकिन उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना जो है वो आपके कंप्यूटर का काम होता है। कंप्यूटर इज एन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी चेंज द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कह सकते हैं दैट कैन बी कन्वर्ट द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब इस पॉइंट पे आके हम ये बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक लैपटॉप, कंप्यूटर सिर्फ एक डेस्कटॉप, कंप्यूटर सिर्फ एक वर्क स्टेशन, कंप्यूटर सिर्फ एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, कंप्यूटर सिर्फ एक सर्वर मशीन का नाम नहीं है। Anything that we have to convert the data into information, a raw facts to make a useful information for you is called computer. As the name is shown, computer is came for computing. You can compute, you have to be get a calculation on it, or before you get to calculate, you have a certain kind of data that you should to be calculate on a particular kind of set of regulations. To follow these certain regulations to make a data to be a calculated and a computed to make it a information for you or the output for you, this is called computer. मतलब एक और तरह से हमने एक डेफिनेशन देख ली कि एक मेरे पास डाटा मौजूद था, उस डाटा को मैंने अपने तरीके से नहीं, एक पर्टिकुलर एसओपीज और एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंप्यूट किया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस होने के बाद एक यूजफुल आउटपुट मेरे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। मतलब मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो हैं, a device can make a millions of calculation in a second is called computer। देखिए हमारी सोच से भी ज्यादा जो है वो कंप्यूटर ज्यादा तेज काम कर रहा होता है।
और सेम थिंग जो है वो हम अपने बिजनेस में भी देख रहे होते हैं कि नॉट ओनली इफ यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ बिजनेस, आई रिकमेंडिंग यू टू not only doing your full 150% efforts to make it possible. Try to hire that kind of people who have more efficient on these things. मतलब आप ऐसे लोग जो है वो हायर करें जिनको इन तमाम चीजों के बारे में पहले से पता हो, या वो इतने सुपर एफिशिएंट हो कि वो अपनी तमाम चीजें जो है वो एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर ये होता है कि डिफरेंट टास्क जो है वो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि एक आम इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो 5 से 6 दिन में काम करेगा, वो कंप्यूटर जो है वो विद इन अ सेकंड जो है उसको प्रोसेस करके आपके सामने लाके रख देता है। अब जो हम बात कर रहे हैं ना, वी हैव द सर्टेन काइंड ऑफ सेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सर्टेन पर्टिकुलर SOPs ऑन इट। So these all the rules and regulation is called, you can say, at this initial point the software, कि जो आपने एक डाटा को इनपुट लिया, उसको आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है वो इंटरप्शन के थ्रू जो है वो जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाता है, एंड आउटपुट इज द इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने देखा था कि डाटा की अहमियत जो है वो कितनी ज़्यादा है, हाउ डाटा इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी कि हमने केस डिस्कस किया था अबाउट पिज्जा हट, कि पिज्जा हट को जो है वो कितना टाइम लगा पाकिस्तान आने में, अपनी फर्स्ट पहली ब्रांच ओपन करने में, हाउ दे आर प्लेइंग विद देयर डाटा, किस तरह वो डाटा से जो है वो प्ले कर रहे थे। इसी तरह जैसे कि अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि जब भी आप पाकिस्तान या फ्लाई करके वापस आते हैं, या आपकी जो है वो एक फ्लाई हिस्ट्री जो होती है वो हिस्ट्री कहाँ से आ रही है, एक सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ डाटा जो है वो आपका मौजूद होता है whenever you are fly, whenever you are going from one side to another side। अब आप देख रहे हैं कि हर चीज को जो है वो सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, और वो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो किस तरह मूवमेंट हो रही होती है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, नॉट ओनली फॉर द इंटरनेशनल, यू आर मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो उस जगह पे भी आपका जो है वो पूरा डाटा आपसे लिया जा रहा होता है। At that time, this is only a data whenever you are traveling from Karachi to Lahore. They are asking for your CNIC. They are asking the purpose why you are traveling. They save the date and the time. तो ये तमाम चीजें उनके लिए एक तो डाटा है, लेकिन जैसे कि अब इस टाइम पे अगर वो मालूम करना चाहें कि कितने लोग कराची से जो है वो लाहौर के लिए या कराची से आउट ऑफ द सिटी जो है वो मूव करे हैं, तो वो जो अब उनके लिए जो है वो एक सर्टेन इंफॉर्मेशन बन गई, मतलब एक पर्टिकुलर रूल्स के ऊपर अगर काम करेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। वी ऑलरेडी हैव डन लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन डाटा इंफॉर्मेशन। सो द कंप्यूटर की एक जो है वो मतलब परसेप्शनली जो वो एक बात की जा रही होती है, तो हम कहते हैं कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो हमारे पास सर्किट्स मौजूद हों। मतलब सर्किट्स मौजूद होंगे क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल वी हैव RLC सर्किट, ठीक है। अब RLC सर्किट क्या होता है, एनीवन नो इन द क्लास?
What is the RLC circuit? देखिए पूरा जो हमारा कंप्यूटर है ना, दे आर वर्किंग ऑन दिस RLC सर्किट। मैं आपकी छोटी सी मतलब के बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है स्टार्टिंग विद दिस इज कॉल्ड R, and then we have this, and then we have this thing, और यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास माइनस है। ओके, दिस इज कॉल्ड C, दिस इज कॉल्ड L, और दिस इज कॉल्ड R, and the complete circuit is called RLC, resistance, inductance, capacitance। मतलब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं दे आर वर्क ऑन दिस RLC। अब ये RLC मिलके क्या कर रहे होते हैं, ये RLC मिलके जो है वो बिट्स को और डाटा को जो है वो सेव करवा रहे होते हैं। देखिए हमारे पास डाटा जो है वो किसी भी काम का नहीं है, और इंफॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं रहती, और उसकी एग्जीक्यूशन एंड द प्रोसेसिंग जो है वो किसी काम की नहीं रहती जब तक वो हमारे पास सेफ ना हो जाए। So by doing the saving this all the information and the uh, processing, we have to be a space। वो जो एक छोटी सी स्पेस जो है वो हमारे पास कहाँ से मिल रही होती है, उस जगह पे हमारे पास कैपेसिटर से मिल रही होती है। ये थोड़ा सा डीपली हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको परसेप्शन देना जरूरी था अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, व्हाई दे आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन इट। तो थोड़ा सा आपको जो है वो बैकग्राउंड मैंने दे दिया है कि RLC सर्किट के थ्रू जो है वो हम लोग इस पे अपने डाटा को सेव कर रहे होते हैं। सो आफ्टर द discussion about the electronic device and the conversion of data and information, the third point we have the modern computers are digital, older were analog। So before we have to discuss about the analog and digital, let we have know what is the digital and what is analog। Anyone know in the class? Okay, let me tell you about this। In the digital computers we have a bit system। What we have it? We have a bit system। Okay, what is bit? Bit is should be a 0 और 1। मतलब या तो हमारे पास 0 होगा लॉजिक, या लॉजिक 1 होगी। 0 का मतलब हमारे पास होता है ऑन, और 1 का मतलब हमारे पास होता है ऑफ। तो हम डाटा को जो है वो अपने पास सेव कर रहे होते हैं बाय यूजिंग दिस बिट सिस्टम। या तो हमारे पास ऑन सिस्टम होगा या ऑफ सिस्टम होगा। अच्छा, जो हम RLC की बात कर रहे थे दैट इज कम फ्रॉम द ओल्डर, दैट इज कम फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डाटा इन एनालॉग। अब एनालॉग में क्या होता है, ये तो डिजिटल सिस्टम हो गया। एनालॉग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल समझ लेते हैं। लेट वी हैव दिस, सॉरी, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, ये हमारे पास एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमारे पास जो है ये एक वेव जा रही है। ओके, अब इस वेव को मैं कहता हूँ दैट इज एनालॉग। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वोल्टेज है,
और ये मेरे पास जो है वो सर्टेन टाइम है। एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, एक टाइम वेव के अंदर मेरे पास जो है वो डिफरेंट, मतलब के एरिया के अंदर, इनफाइनाइट एरिया के अंदर। अब मैंने इनफाइनाइट की बात क्यों की, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर जो है वो इनफाइनाइट्स जो है वो मेरे पास पॉइंट मौजूद है, लातादाद पॉइंट्स मेरे पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एनालॉग डाटा है, समझ रहे हैं? एक एनालॉग डाटा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 0.1, 0.3, 0.4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, समझ रहे हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे, दोनों साइड पे हमारे पास जा रहा है। दैट इज ए एनालॉग थिंग। आपको थोड़ा समझाने के लिए कि एनालॉग होता क्या है। डिजिटल, इसी ये बरक्स अगर मैं डिजिटल बनाऊं, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, इसी बरक्स अगर मैं यहाँ पे एक डिजिटल सर्किट बनाऊं, ओके, तो वो या तो हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है। ओके, तो या तो ये मेरे पास 1 पे 1 होगा, 2 पे 1 होगा, 3 पे 0 होगा। मतलब देख रहे हैं ये स्पाइक्स आ रही हैं, या तो ये यूं होगा या तो 0 पे होगा। तो ये मेरे पास जो है वो डिजिटल सिस्टम होता है। अगर मैं इसकी इस तरह बनाऊं, ये बिल्कुल सीधा सीधा आया, ठीक है, देन ये यहाँ से नीचे की तरफ चले गया। फिर अगर फोर्थ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दोबारा 1 है, तो जैसे ही ये 4 पे पहुंचा, तो ये दोबारा ऊपर की तरफ चले गया। सो दिस इज व्हाट वी हैव अ डिजिटल सिस्टम दैट इज 1 और 0। अब ये डिजिटल सिस्टम जो है वो हमारे पास बन कहाँ से रहा होता है, ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिस्टर लॉजिक से बन रहा होता है। मतलब कि हमारी जो ट्रांजिस्टर लॉजिक होती है, ठीक है, वो ट्रांजिस्टर जो है वो क्या काम कर रहा होता है, वो अपने पास एनालॉग सिस्टम से अपने पास जो है वो 1 और 0 की फॉर्म में डाटा को सेव या डिलीट कर रहा होता है, या ट्रांसमिट कर रहा होता है। ये तो थोड़ा सा आपको जो है वो मैंने बैकग्राउंड बता दिया है कि व्हाट इज डिजिटल एंड व्हाट इज एनालॉग। तो पुराने जमाने में आपको पता है ना कि वो एक वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू जो है वो वैक्यूम थिंग्स के ऊपर जो है वो आपका डाटा जो है वो सेव हो रहा होता था। ठीक है, आप एनालॉग के थ्रू जो है वो अपने डाटा को अपने पास इनटेक कर रहे होते थे। और आज के जमाने में आपके पास जितने भी सर्किट हैं दैट इज ऑन योर ट्रांजिस्टर बेस्ड। ठीक है, ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट होने की वजह से हमारे पास जो है वो सर्किट्स की स्पीड भी जो है, और हमारे पास डाटा की स्पीड भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब डाटा की स्पीड बढ़ने की वजह भी यही है कि हम जो है वो ट्रांजिस्टर्स में चले गए हैं, और उसकी जो फैब्रिकेशन है, जो हम कह रहे होते हैं ना आजकल, जैसे आप चिपसेट की बात कर रहे होते हैं इन द मॉडर्न थिंग्स नाउडेज, जो आपके पास सेल फोन्स हैं, ठीक है, तो उसमें लोग बात कर रहे होते हैं इसमें मीडिया टेक का जो है वो चिपसेट लगा हुआ है। कोई कह रहा होता है इसके अंदर जो है वो हीलियम का जो है वो चिपसेट लगा हुआ है। तो ये क्या है चिपसेट सारे, कि आपके पास जो है वो फैब्रिकेशन है, और वो फैब्रिकेशन किसकी है बेसिकली, वो फैब्रिकेशन जो है वो आपकी ट्रांजिस्टर्स की ही है। मतलब जो आपका डाटा सेव हो रहा है ना, और आपका डाटा जो है वो प्रोसेस हो रहा है आपके प्रोसेसर के अंदर, तो उसके अंदर एक सिंगल पॉइंट के अंदर जो है ना मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो फैब्रिकेट किए गए होते हैं। अब वो डाटा की स्पीड इससे कैसे बढ़ गई। अब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, और लोग आज से जो है वो 5-6 साल पहले जब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे जो है वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो बात की जा रही होती थी।
पाकिस्तान में तो सिर्फ बात की जा रही होती थी, उसकी जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट और परसेप्शंस देखे जा रहे होते थे, लेकिन बाहर के मुल्क में उस टाइम पे भी जो है वो इसके ऊपर रिसर्च पे अच्छा खासा काम किया जा चुका था। और वही चीज जो है वो बस जस्ट इन द 4 to 5 years हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजीज के अंदर कितनी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजीज के अंदर कितनी जो है वो क्विकनेस और फास्टनेस जो है वो आ चुकी है, कि आप देखें कि आपके पास जो है वो अ, बिल्कुल स्मॉल डिवाइसेस जो आपकी होती हैं, जो कि आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, उसके अंदर कितने फास्ट प्रोसेसर जो है वो आपके पास आ गए हैं, कि आप उसके अंदर अपनी जो है 1080p वीडियो को भी जो है वो रेंडर कर रहे हैं। आप जो है उसके अंदर गेमिंग सॉफ्टवेयर्स भी जो है वो रन कर रहे हैं। आप उसके अंदर डिफरेंट जो है वो और एप्लीकेशंस जो है वो, जो कि बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस के उसके ऊपर आप उसको भी जो है वो अपने पास रन कर रहे हैं। सो हाउ दीज ऑल आर पॉसिबल? दीज ऑल आर गेटिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल चिपसेट। अब वो पावरफुल चिपसेट कैसे आया आपके पास? वो डिजिटलाइजेशन से आया, वो डिजिटल कंप्यूटर की मदद से आया। So I hope you get this slide. What is a computer? Computer is an electronic device. Why this is called electronic? Here I am giving you the example. And then the second point we have, it converts the data into information. And what is the essential of this we have already discussed it. And the third point we have, modern computers are digital. Two digits combined to make a data. मतलब कि दो डिजिट्स हमारे पास जो है 0 और 1 को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास डाटा बन जाता है। Older computers were analog range of value made data, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रेंजेस आपके पास जो है वो मौजूद होने चाहिए टू मेक अ डाटा। तो ये तमाम चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको थोड़ा सा और भी थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग में चीजें और रखने के लिए जो है ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में जो बात की गई है कि 2 बिट्स को जो है मिला के हम डाटा बना रहे होते हैं, ये थोड़ा सा एक और इसकी एग्जांपल ले लें। लेट मी राइट समथिंग हियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो मैं लिखता हूँ 1 0 1 0 1 1 0, और फिर आगे लिख देता हूँ इसके 0 1 0 1 1 1 0। तो आपको क्या समझ आ रहा है ये लिखा है जो मैंने? एक मैंने 8 और 8 बिट की जो है वो स्ट्रीम लिखी है, ठीक है। अब ये 8 और 8 बिट की स्ट्रीम जो है ये क्या है? एनीवन नो? आपको नहीं पता चलेगा। ये जो है मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो है वो बात लिखी है। एक कंप्यूटर की एक लैंग्वेज में मैंने डाटा लिखा है, एक स्ट्रीम में जो है वो डाटा यहाँ पे लिखा ही है, जिसका मतलब है आई एंड दिस इज यू। मतलब यहाँ पर जो है वो मैंने आई यू लिखा है, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ योर यूनिवर्सिटी, इंडस यूनिवर्सिटी। ओके। तो ये जो आई यू जो हम एक विद इन अ सेकेंड जो है वो अपने हाथ से लिख लेते हैं, ठीक है, और ये विद इन अ सेकेंड हम जो है वो अपने पास की से जो है वो प्रेस करते हैं और हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है। ये बेसिकली आ कहाँ से रहा है? ये इसके पीछे, आई के पीछे पूरी एक एक्सट्रीम स्ट्रीम ऑफ 8 बिट का जो है वो डाटा होता है। 8 बिट के जो है वो 0 1 की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो है वो आई आपके पास जो है वो लिखा हुआ आ रहा होता है। और आप देख रहे हैं कि अगर आप अपने कीबोर्ड से जस्ट आई प्रेस करें तो विद इन अ नैनो सेकेंड्स, मतलब कि विद इन अ माइक्रो सेकेंड्स अगर हम बोले इसको, कि 0.0003 सेकेंड से पहले पहले जो है वो आपके पास डाटा सामने शो हो जाता है। अगर आप उसको वर्ड के ऊपर या किसी भी आप नोट पैड के ऊपर ओपन करके आयु लिखेंगे तो वो फौरन आपके सामने जो है वो डाटा शो कर देगा। So have you seen how these all are fast?
और ये जो है किस तरह स्ट्रीम और डाटा जो है वो आपका डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है और सेव कर रहा होता है चीज़ों को. So I think we have a lot of time and lot of things we have discussed in this slide. और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको समझ ना आई हो. So after they have to get a brief introduction and a brief perception and the brief background of computer, here we have a definition of computer. A computer is a machine or device that perform processes, calculation, and operations based on instruction provided by a software or hardware program. It is designed to execute applications and provide a variety of solutions by combining integrated hardware and software components. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है इसको देख लेते हैं. यहाँ पे ये बात हो रही है कि कंप्यूटर इज एन मशीन. अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम थोड़ा सा ना ऊपर आ गए. ठीक है. अब हम मशीन की बात कर रहे हैं. कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस. मतलब हमने बात की थी ना कि कंप्यूटर जो है वो किसी डेस्कटॉप का नाम नहीं है. कंप्यूटर जो है वो किसी लैपटॉप का नाम नहीं है. कंप्यूटर किसी भी मशीन और डिवाइस को कहेंगे जो हमारे पास परफॉर्म करती है प्रोसेसेस, जो हमारे पास परफॉर्म करती है कैलकुलेशन. ठीक है. और डिफरेंट ऑपरेशन बेस्ड इंस्ट्रक्शन लेकर जो है वो हमारे पास डाटा को कन्वर्ट कर रही होती है इंफॉर्मेशन के अंदर. डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब कि आपके पास जो है वो कोई भी डिवाइस आपके पास है. फॉर एग्जांपल यू हैव आपके पास गेमिंग डिवाइस है कोई. ठीक है. जिसको आप अपना प्ले स्टेशन 2 की बात कर लें. ठीक है. इसी तरह आपके पास जो है वो एक्सबॉक्स की आप बात कर लें. ये गेमिंग डिवाइसेस हैं. ठीक है. तो ये क्या कर रही है, ये भी आपके जो है वो एक मशीन है, एक कंप्यूटराइज मशीन है जो कि आपका डिफरेंट प्रोसेसिंग और डिफरेंट ऑपरेशन बेस्ड जो है वो काम कर रही होती है. इसी तरह आपकी डिफरेंट जो मशीन्स हैं आजकल, जैसे सीएनसी मशीन्स हैं. ठीक है. और भी जो इस तरह की स्मार्ट मशीन्स जो आपके पास फैक्ट्रीज वगैरह में रन हो रही हैं, दे आल्सो आर हैव different kind of processing and different kind of data that should be have to process by themselves to make it possible for the user getting in the output. मतलब उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट डाटा जो है वो और डिफरेंट जो है वो चीज़ों को प्रोसेस करने की ताकत मौजूद होती है. डिफरेंट तरीके से जो है वो डाटा को यूज करते हुए अपने आप में प्रोसेस करके उसका आउटपुट दे रहा होता है. अब डिवाइस के अंदर यू हैव अ लैपटॉप, यू हैव योर सेल फोन्स. वो भी एक जो है वो मिनी कंप्यूटर ही है जिसके अंदर आप तमाम चीज़ें जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं. जो आपके आजकल के स्मार्टफोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर द मतलब जो कन्वेंशनल फोन चल रहे थे उसकी बात नहीं कर रहा. ये स्मार्टफोन्स जो आपके पास हैं इनकी बात कर रहा हूँ. So what is a computer? Computer is a machine or device that perform processes, calculation, and operation based on instructions provided by a software or hardware program. It is designed to execute applications or provide variety of solutions by combining integrated hardware and software components. अब इधर जो हमने बात की गई है डिफरेंट चीज़ों की, उसको हम इन फ्यूचर जो है थोड़ा डीपली देखेंगे. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं. यहाँ पर हमने बात की है अबाउट सॉफ्टवेयर. इधर हमने बात की है रिगार्डिंग हार्डवेयर. इधर हमने बात की है डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मतलब के कंपोनेंट्स की. ठीक है. तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल डिस्कस डीपली इन दिस कोर्स.
इधर एक और चीज यहाँ पे बात की है, दैट इज इंटीग्रेटेड. सो व्हाट इज यू विल हैव गेट, आपको क्या समझ आता है व्हेन यू हैव, आपको इंटीग्रेटेड का नाम जब आपके दिमाग में लिया जाए, क्या समझ आता है आपको? देखिए, इन द यूनिवर्सिटी लाइफ यू हैव टू बी डिस्कस एंड यू हैव टू बी नो कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए. ठीक है. यहाँ पर जो लर्निंग हो रही होती है वो उस तरह नहीं होती जो आप रेगुलर लाइफ में जो है वो अपनी लर्निंग करते रहें, और जो आप इससे पहले अपने एकेडमिक्स के अंदर जो है वो लर्निंग करते रहें, या फिर उस तरह आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा. यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ लर्निंग एंड यू हैव टू चेंज कि आपको जिस तरह मतलब नॉलेज दी जा रही है, आपको किस तरह उसके जो है वो अडेप्ट करना है. मतलब यूनिवर्सिटी में जब आप आए, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आपको हर एक जो भी स्लाइड आपको पढ़ाई जा रही होती है, जो भी चीज़ आपको जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, उसमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, यू हैव टू बी आस्क्ड टू योर टीचर. ठीक है. आई नो nowadays is very difficult to be learn about on the online, कि हम जो है वो डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके थ्रू आपको जो है वो जो सब तमाम चीज़ें जो है वो पहुंचा रहे हैं. ठीक है. लेकिन इसी को जो है अगर आप इस तरह देखें कि आपको इसमें फ़ायदा भी है कि अगर एक बार एक चीज़ एक टीच इंस्ट्रक्टर ने आपको बता दी, तो दिस इज़ ऑल आर इन योर रिकॉर्ड्स. और आपकी यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, इंडस यूनिवर्सिटी ने, कि आपको हर रिकॉर्ड जो है वो आपके सीएमएस पे अपलोड कर दिया गया है. एंड आप उसको बार-बार जो है वो सुन सकते हैं. इफ यू कैन नॉट बी अटेंटिव ऑन दैट टाइम, इफ यू वर एब्सेंट ऑन दैट क्लास, यू हैव आपको जो है वो दोबारा कोई चीज़ समझनी है, तो आप अगेन उस चीज़ों को जो है वो जाके अंडरस्टैंड और समझ सकते हैं. तो हम जो है काफ़ी अरसे से जो है वो इंटीग्रेशन और ये तमाम चीज़ें जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं. हमने बड़ी जो है वो इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर ली. मैथ्स के जो है वो बड़े सवालात भी जो है वो सॉल्व कर लिए. ठीक है. बड़ी दिन रात हमने इसके ऊपर मेहनत करी. लेकिन हमें पता है कि इंटीग्रेशन है क्या, व्हाई वी आर यूजिंग दिस इंटीग्रेशन. हमने अपनी ज़िंदगी के जो है वो अहम तरीन दिन जो है वो अहम तरीन टाइम जो है वो इंटीग्रेशन करने में गुजार दिया. बेटा, इंटीग्रेशन मीन्स सम. ठीक है. इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है? सम कहलाता है. व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन? इट इज कॉल्ड सम. एंड व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या कर रहा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें इस तरह की होती है ना, 2x+3y, या 2x+ 4x² प्लस 5x³ ठीक है. तो इस तरह की जो इसमें जो आपके पास लाइंस की जो है वो कुछ अ, मतलब के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और आप उसको डिफरेंशिएट या सम अप कर रहे होते हैं. तो डिफरेंशिएट में आप क्या कर रहे होते हैं? स्लोप निकाल रहे होते हैं. ओके. आप जो है वो एक लाइन का एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, मतलब आप अपने आप को कम कर रहे होते हैं. और इंटीग्रेशन में आप सम कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अपने साथ मिला रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं. मतलब इंटीग्रेट का मतलब हमेशा होता है आप सम कर रहे हैं, मिलाना. ठीक है. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? द वैरायटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय कंबाइनिंग इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को मिलाने के लिए भी जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन मतलब मिला देना. एक हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, या दो हार्डवेयर को आपस में आप अगर मिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने जो है वो एक सर्टेन सॉफ्टवेयर यूज किया. ठीक है. उस सॉफ्टवेयर को आप किसने एक छोटी सी डिवाइस, किसी कंप्यूटर डिवाइस से अगर आप उसको इंटीग्रेट करवा रहे हैं या मिला रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वर्क फॉर योर कंप्यूटर. So after we have discussed about the computer and the computer definition, we have here for using the computer. मतलब पहला जो हमारा एजेंडा था, we have just
completed. और सेकंड एजेंडा हमारा है कि हाउ द कंप्यूटर यूजफुल इन योर लाइफ. सो कंप्यूटर इन योर लाइफ, व्हाई लर्न अबाउट कंप्यूटर्स. कुछ सवालात हैं. Pervasive computer, also known as ubiquitous computing. Computers have become an integral part of our life. Basic computer literacy, knowing about the understanding computer and their user is an essential skills today or for everyone. मतलब कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर. Okay, so in this slide we have why learn about computer and what is the pervasive computing. हम कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसके जो है वो आगे आपको अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा कि why these are all are using in the business and what we are here for using the computer in our life. Before this, we have to discuss on the pervasive computer. Pervasive means you have a lot of things that is in your मतलब इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी widely जो चीजें जो है वो spread out हो रही हैं in the group of the people. तो इसी तरह हमारे पास जो है वो परसेफिक कंप्यूटिंग मौजूद है कि हम एक कंप्यूटर के अंदर जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो स्प्रेड आउट हो रही होती है. You have a lot of things in your pop-up on your emails. You have a lot of thing in the decisions you are making. You have using your computer by making your company softwares. Okay, आप यूएस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. You have using कैलकुलेशन कैलकुलेटर का काम कर रहे हैं. You have to export the data from one side to another side. आप ईमेल के थ्रू डाटा को भेज रहे हैं. You are getting the information on the computer. गेटिंग इंफॉर्मेशन आप कैसे कर रहे हैं कि यूएस के ऊपर अगर आप जो है कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं, सो यू हैव गेट जो है वो आपने कार्ड स्वैप किया है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे हैं. तो डिफरेंट परवेसिव कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो डाटा जो है वो आप मतलब के एक जगह से दूसरी जगह को मूवमेंट या एक ही पॉइंट पे एक ही चीज पे आप डिफरेंट चीजों को जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं. और कंप्यूटर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है आवर लाइफ का. अब इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई थी ना किसका मतलब क्या होता है. ये सम ऑफ करना मतलब अपने आप के साथ जो है वो जोड़ना, ठीक है. तो इंटीग्रल पार्ट क्या है कि आपके साथ जो है वो कंप्यूटर आज की दुनिया में जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है. आपके एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप मूव भी होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो आपको कंप्यूटर चाहिए. लेट्स टेक द एग्जांपल, यू आर मूविंग टू फ्रॉम कराची टू लाहौर, ठीक है. तो अगर आप कराची टू लाहौर मूव करते हैं तो यू हैव in between I think three motorways. One motorway is Karachi to Hyderabad. Second motorway Karachi to Sakkar, Sakkar to Multan, and third is Multan to Lahore. कराची हैदराबाद टू सक्कर अभी तक बना नहीं. तो इन तीन मोटरवेज के ऊपर जो है अगर आप मूव करते हैं तो आपको पता है कि अब आपको जो है वो एम टैग की जरूरत पड़ती है. व्हाट इज द एम टैग. एम टैग ये है कि वो आपके कार के ऊपर जो है वो छोटी सी चिप लगा देते हैं इन योर विंड स्क्रीन, ठीक है. और वो विंड स्क्रीन पे जो चिप लग जाती है वो जैसे ही आपकी गाड़ी वहां से मूव करती है वो उस चिप के थ्रू जो है वो आपको पूरा डाटा जो है जितना भी आपकी गाड़ी के ऊपर जो भी डाटा है, ये गाड़ी किसके नाम है, ठीक है, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का ओनर कौन है, ठीक है, गाड़ी जो है वो किसने अपने नाम से जो है वो एमटेक के ऊपर रजिस्टर कराई हुई है, ठीक है, ये गाड़ी कितनी बार जो है वो इस मोटरवे पे जो है वो रन की गई है, और इसके ऊपर कितना जो है वो इसका टूल टैक्स जो है वो लगेगा. तो अब क्या होगा कि वो जो गाड़ियां जो है वो एक एक घंटा जो है वो टूल प्लाजा पे जो है वो वेट कर रही होती थी, ठीक है, अपनी बारी का फॉर गिविंग द टैक्स, ठीक है. तो अब उन चीजों से भी जो है वो आप इम्यून हो चुके हो. आप जस्ट आपकी गाड़ी वहां से मूव करेगी और वो जो सेंसर है वो आपके एम टैग को जो है वो सेंस करेगा और आपको जो है वो बैरिक खोल देगा और गाड़ी वहां से निकल जाएगी. यू हैव डोंट पे ऑन द टाइम, मतलब उस टाइम आपको पे करने की जरूरत नहीं है. आपको पहले से ही जो है अपने मोबाइल फोन से या किसी भी अपने जैसे आप
मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ज़रिए आप अपने एम-टेक को रिचार्ज कर लेंगे और फिर जस्ट आप वहाँ से मूव करते हैं तो आपकी जो भी टूल आप पे करते हैं वो पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके जो है वो ज़िंदगी के साथ जो है वो अब कंप्यूटर जुड़ गया है। अगर आपको अभी भी जो है उसकी एप्लीकेशन से लोग जो है बहुत सारे पीछे चल रहे होते हैं, ठीक है? आजकल की दुनिया में तो बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिफोर 5-10 इयर्स बिफोर, तो पाकिस्तान में लोग जो है उस चेंज को भी जो है वो रेजिस्ट कर रहे होते थे। ठीक है? तो लोगों का तो काम ही ये है भाई चेंज को रेजिस्ट करना, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन आई, तो फौरन से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस आ गई। तो हर किसी के पास जो है वो लैपटॉप और हर किसी के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन स्मार्ट मौजूद है। तो यार दे आर वेरी ईज़िली कैन गेट द ऑल द थिंग्स इन देयर लाइव्स, और हम उसको जो है वो चीज़ों को अडैप्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब होता है मालूमात, ठीक है? ऐसे हम कहते हैं ना कि हमारी लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान में कितना है, लिटरेसी रेट पाकिस्तान में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 30% है या 40% है। और वो 30-40% भी जो है वो किस तरह बताया जाता है, मतलब उस पढ़े-लिखे लोगों के अंदर शुमार आता है 30-40% का, और इसमें से वो लोग भी पढ़े-लिखे लोगों में शुमार किए जाते हैं जो कि अखबार पढ़ सकते हैं। एनीवन नो कि 100% लिटरेसी रेट किसी मुल्क का होगा या किसी शहर का होगा? बेटा इस तरह की दुनिया में शहर मौजूद हैं और मुल्क मौजूद हैं जहाँ पे 100% या 99% लिटरेसी रेट है, और वहाँ पे उस इंसान को लिटरेट माना जाता है जो बैचलर्स हो। आई थिंक श्रीलंका की एक जगह है, वहाँ पर जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो 99% है, और वहाँ पर आई थिंक जो लिटरेसी जिसको रेट में जो उसके जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह के हैं, जो बैचलर्स जो बंदा है, ठीक है? वो किसी भी उसमें हो, बीए किया हुआ हो या कोई भी बैचलर्स उसने किया हुआ हो, तो उसको लिटरेट माना जाता है। तो बेसिक लिटरेसी मतलब कंप्यूटर की जो मालूमात है वो क्या है? नोइंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एंड देयर यूजिंग इज एन एसेंशियल स्किल्स टुडे फॉर एवरीवन। देखिए बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो है ना वो आजकल हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस तरह के हर इंसान को जो है वो अब आजकल जो है वो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर की और नोइंग अबाउट हाउ टू ऑपरेट द थिंग्स, ऐसे कि आप अपने डिवाइसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसकी मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दूंगा आगे, ठीक है? एंड देयर यूजेस इन द एसेंशियल स्किल टुडे ऑफ एवरीवन, मतलब कि हर किसी की जो है वो स्किल्स जो है वो आजकल बन गई हैं कि वो मशीन्स के ऊपर किस तरह काम कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटराइज मशीन है, ठीक है? अगर कोई इंसान जो है वो ऑफिस जा रहा है तो वो भी जो है वो या तो लैपटॉप यूज करेगा या डेस्कटॉप पे कोई ना कोई अपना एप्लीकेशन चला रहा होगा, ठीक है? आप स्प्रेडशीट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यू आर यूजिंग सम कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? डिफरेंट कंपनीज के जो है वो अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है? तो आप उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या है, ये आपके डिफरेंट चीजें जो है वो आप कैसे जो है अपनी लाइफ के साथ जो है वो चला रहे हैं, ठीक है? आफ्टर दैट वी हैव एसेंशियल थिंग फॉर टुडे एवरीवन, मतलब कि अब तो आजकल जो भी, मतलब कि हमने एग्जांपल ले ली, ठीक है? आप जो भी काम कर रहे होते हैं ऑन योर कंप्यूटर या डिवाइसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। Okay, before 1980, computers were large and expensive. Very few people had access to them. Computers were mostly used for high volume processing tasks. मतलब 1980s से पहले जो है वो आई थिंक 1980s में जो है वो 486 और 586 वगैरह कंप्यूटर आ गए थे, ठीक है? बिल्कुल मैंने वो कंप्यूटर नहीं देखे, मैंने सिर्फ उसके नाम ही सुने हैं, ठीक है? 486 586 कंप्यूटर, आई थिंक 586 कंप्यूटर शायद मैंने देखा है। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ, तो वहाँ पर जो है वो हमारे पास एक कंप्यूटर लैब होती थी, और उस कंप्यूटर लैब में जो है वो हम जाते थे। मैं प्राइमरी स्कूल्स में जब मैं था, ये सिंधी मुस्लिम में स्कूल बना हुआ है, तो हमारे पास कंप्यूटर लैब में जो है वो कंप्यूटर जो पड़े हुए थे, उसमें
डिस्क लगती थी पहले, ठीक है। वो एक फ्लॉपी डिस्क थी, उसका साइज भी बड़ा एक मतलब नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क जो आपने शायद देखी हो, उससे थोड़ा बड़ा ही था। तो वो फ्लॉपी डिस्क लगती थी, तो उसमें जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था या उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता था वो फिर रन किया जाता था। वो एक छोटा सा कोई गेम हो, ठीक है, या वो कोई कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर हो, तो वो जो है वो उस टाइम पे उसको चलाया जाता था। फिर जब डिस्क हम बाहर निकाल देते थे तो वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे खत्म हो जाता था, ठीक है। तो बिफोर 1980s जो है कंप्यूटर वर लार्ज, कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, ठीक है, और कंप्यूटर जो है बहुत महंगे होते थे। मुझे याद है कि मैंने पेंटियम 2 परचेज किया था इन 1980 सॉरी 1998 के अंदर, 98 99 में। तो इट्स वो कॉस्ट अबाउट आई कैन से 45,000 रुपीज, 45,000 रुपये में जो है वो पेंटियम 2 एक कंप्यूटर परचेज किया था। और अगर उस वक्त डॉलर जो था वो कुछ 50 रुपीज से भी कम का था, 45 रुपीज का था। तो आज डॉलर जो है वो 3 गुना ज्यादा हो गया है। तो आप समझ लें कि आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.25 लाख रुपए का आपने एक डिवाइस परचेज की, जिस डिवाइस में एक बड़ा सा मॉनिटर था, एक बड़ा सा सीपीयू था, ठीक है। फिर ये तमाम चीजें, माउस भी जो है वो बॉल वाला था, लेजर माउस नहीं था। कीबोर्ड की साइज भी जो थी वो जो आजकल की जो स्मार्ट कीबोर्ड्स आ रहे हैं उससे जो है वो बहुत ज्यादा था। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत हैवी डिवाइस आपके पास आती थी, ठीक है, और जिसके अंदर जो है वो ना इतनी अच्छी मेमोरी होती थी, ना ही इतनी अच्छी स्टोरेज होती थी, ना कैशे इतनी अच्छी होती थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से तो वो बहुत एडवांस लेवल चीज थी। लेकिन अगर आज के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर जो है वो बहुत साइज में ज्यादा होते थे, और उसकी प्राइस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। अच्छा, बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर होते थे, ठीक है, हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं होता था। बहुत कम, या तो कुछ ऐसे लोग जो कंप्यूटर लिटरेट थे, ठीक है, जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ इन टच थे, या तो उनके पास कंप्यूटर्स होते थे, या तो वो लोग रखते थे जो कंप्यूटर पे कुछ कैलकुलेशंस या इस तरह का जो है वो काम करना चाहते थे। कंप्यूटर वर मोस्टली यूज फॉर हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग टास्क, मतलब कि आजकल तो आप कंप्यूटर जो है मूवीज देखने के लिए और तमाम चीजें करने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर सिर्फ हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग टास्क के लिए जो है वो यूज किया जा रहा होता था। माइक्रो कंप्यूटर इन द अर्ली 80s, मतलब अर्ली 80s में जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए थे। इन एक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहते हैं, 486 586 से शुरू के मॉडल्स थे, ठीक है। कंप्यूटर यूज इंक्रीज ड्रामेटिकली, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो 80s में जो है वो ड्रामेटिकली, मतलब कि एक मतलब बहुत ज्यादा जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया था। एक रिसर्च बताती है कि अमेरिका के अंदर जो है ना, अमेरिका के अंदर एक रिसर्च की गई थी आफ्टर 90s, और मतलब इन 90s अगर बात करें, ये तो 80s की बात कर रहे हैं, अगर 90s की बात करें तो वहां पर जो है वो 90s में इंटरनेट आ चुका था, ठीक है, अमेरिका में। डायल अप ही था, ठीक है, लेकिन इंटरनेट आ चुका था। तो आफ्टर वी हैविंग द इंटरनेट इन अमेरिका, तो कंप्यूटर जो है वो डोर टू डोर और होम टू होम आ गया, समझ रहे हैं। जब तक हमारे पास इंटरनेट मौजूद नहीं था तो उस टाइम तक हमारे पास कंप्यूटर हर घर में मौजूद नहीं था। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि आपके सर्कल में एक दो ऐसे लोग होते होंगे उस टाइम पे जिनके पास कंप्यूटर्स थे, लेकिन हर घर पे कंप्यूटर नहीं था। लेकिन जब से आपके पास इंटरनेट आया तो हर घर पे कंप्यूटर आ गया। आप इसकी आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि स्मार्टफोन जो है आज से 10 साल पहले शायद आपके पास भी ना हो, ठीक है। आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन शायद आपके आप भी यूज ना कर रहे हो, लेकिन आज अगर आप देखें पिछले 5 5 सालों से तो स्मार्टफोन जो है वो हर इंसान के पास है। वो आपके पास जो है वो घर पे काम करने आ रहा है, ठीक है, बंदा उसके पास भी है। आप देख रहे हैं, आप किसी से बार्बर शॉप पे जा रहे हैं, उसके पास भी है। इवन के आप जो है वो अ, किसी मतलब के कोई गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो, हर किसी के पास जो है वो स्मार्टफोन इस टाइम पे आ चुका है, ठीक है। वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, उसके पास भी जो है वो स्मार्टफोन इस टाइम पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंटरनेट एक्सेस है, आपका जो 4G जब से पाकिस्तान में आया है,
ठीक है। 4G आने के बाद जो है वो कंप्यूटर हर किसी के पास जो है वो एक्सेसिबल हो गया है। मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास जो है वो एक्सेसिबल हो गया है। कंप्यूटर को स्प्रेड आउट होने के लिए, कंप्यूटर को जो है वो हर जगह पहुँचाने के लिए हमारा इंटरनेट ने जो है वो बहुत एसेंशियल जो है वो पार्ट इस्तेमाल किया है। तो आजकल के दौर में देखें तो मोर देन 60% ऑफ यूएस हाउसहोल्ड इंक्लूड अ कंप्यूटर एंड मोस्ट यूज कंप्यूटर एट वर्क। आजकल जो है वो 60% से ज़्यादा जो है वो यूनाइटेड स्टेट हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड क्या होते हैं, जो आपके घर वगैरह और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, इंक्लूड अगर उनके पास जो है वो कंप्यूटर मौजूद है, ठीक है। और तकरीबन 100% जो है, जो लोग काम पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, उनके पास अपने वर्क जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वहां पर कंप्यूटर मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कवरेज इनटू अ सिंगल यूनिट विद मल्टीपल केबल कैपेबिलिटीज। मतलब वही वाली बात हो गई ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, वो कन्वर्जिंग इनटू अ सिंगल यूनिट्स विद मल्टीपल कैपेबिलिटीज। मतलब एक सिंगल यूनिट को जो है वो यूज कर रहा है और उसके पास जो है मल्टीपल कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूज। कंप्यूटर इंडिविजुअल यूज जो है वो कैसे यूज किया जा रहा होता है। सबसे पहले हमने बात की थी कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फिर हमने देखा कंप्यूटर जो है वो एनालॉग है, डिजिटल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर जो है वो डाटा को जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने चेक किया, स्टडी किया अबाउट द अर्ली एज पे कंप्यूटर जो है वो किस तरह काम कर रहा था, ठीक है। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर जो है वो प्रिसिवली कंप्यूटिंग किस तरह हो रही होती है, ठीक है। डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं कंप्यूटर में। फिर हमने जो है वो कंप्यूटर के सब कुछ एजेस देख लिए कि कंप्यूटर 90s में 80s से पहले किस तरह के थे कंप्यूटर, 80s में कैसे थे और कंप्यूटर 90s में, और आजकल कंप्यूटर की जो है वो किस तरह आप लोग यूज कर रहे हैं इन योर मोबाइल हैंडसेट्स। अब हम कुछ देख लेते हैं कंप्यूटर के यूजिंग कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर तीन तरह यूज हो रहा होता है। कंप्यूटर आप इंडिविजुअल भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं, और कंप्यूटर आप एज अ सोसाइटी भी यूज कर रहे होते हैं। किस तरह यूज करते हैं कंप्यूटर, यू आर यूजिंग एज ए इंडिविजुअल। आप अपने इंडिविजुअली इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं। कंप्यूटर यूजिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी एक कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहां पे कंप्यूटर किस तरह यूज हो रहा होता है। कंप्यूटर यूजिंग एंड एज अ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में कंप्यूटर जो है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसके बारे में जो है वो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस कर लेते हैं।